Dear learners, I am Dr. Sunil Kumar Singh, Senior Professor in Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi. Today I am going to present the 19th lecture under the course Teaching Skills for Higher Education. The title of this lecture is Relevance of Skill of Stimulus Variation. प्यारे अधिगमकर्ताओं, आज हम उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण कौशल नामक पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याख्यान संख्या 19 आपके समक्ष प्रदर्शित करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है उद्दीपक परिवर्तन कौशल की प्रासंगिकता। इसके अंतर्गत विषय वस्तु के रूप में विभिन्न पक्षों पे बातचीत की जाएगी, जिसको कि 9 भागों में यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। So the contents will include introduction, then why is stimulus variation important, then third, implementation in higher education, fourth, practical applications, then fifth, common mistakes to avoid, sixth, implementation guidelines, seventh, implementation challenges, eighth, things to ponder or points for discussion, followed by the last point, that is conclusion. इस तरह से विषय वस्तु के रूप में हम इन सभी 9 पक्षों पर क्रमशः बातचीत करेंगे। सो प्रस्तावना के साथ शुरू करते हैं। We know that the attention flickers like candle flames in human beings in general and children and youth in particular. So teachers must evolve into dynamic performance of teaching by use of behavior patterns, by including gestures, movement, voice, media, and well integrated silence in between. It should become the teacher's toolkit, turning lessons into experiences. हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का ध्यान विशेष तौर पे उसी प्रकार से परिवर्तित होता रहता है जिस प्रकार से एक मोमबत्ती की लौ हिलती डुलती रहती है और एक स्थान पे स्थिर नहीं रहती है। विशेष तौर पे हम ये पाते हैं कि बच्चों और युवाओं में ध्यान एक जगह पर केंद्रित रखना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। इसीलिए शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक की उद्दीपक परिवर्तन कौशलों के समुचित उपयोग की आवश्यकता होती है। उसे विभिन्न प्रकार की व्यवहारगत प्रणालियों का उपयोग करना आवश्यक होता है, जिसमें खास तौर पर विभिन्न हाव भाव, विभिन्न तरीके से गमनशीलता, शब्दों का उपयोग, अपनी भाषा, विभिन्न प्रकार के माध्यम और साथ में विराम का प्रभावी उपयोग, यह सभी मिल करके शिक्षक के उद्दीपक परिवर्तन कौशल के उपकरणों का निर्माण करते हैं और विशेष तौर पे उसके पाठ के पढ़ाने के अनुभव को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। इस व्याख्यान के माध्यम से हम इस कौशल के उन पक्षों पे बात करेंगे जिससे हम ये समझ पाएं कि किस तरह से हमारे दैनिक जीवन की कक्षाएं ज़्यादा ऊर्जायुक्त, ज़्यादा समावेशी और ज़्यादा प्रभावी बने। So this lecture dives into how the stimulus variation skill can transform routine delivery into a vibrant, inclusive and impactful learning journey. Now, why is stimulus variation important? There are some key points which clearly reflect why is this important. First is it prevents monotony. Monotony means it breaks the monotony of the class. It keeps the class more dynamic,
every student of the class is attracted towards the content of the class, towards content of the subjects, towards interactions in the subject. So, a teacher helps the student by breaking the monotony and indulging in the class activities. Second aspect is it enhances retention. If a student is engaged by engagement of multiple senses, then obviously his retention will be increased. So, if your retention is increased, you are also able to improve your memory. Third, it encourages active participation. As said earlier, every student stay involved. You are utilizing various types of patterns of interaction and involving all students in the class. Then it improves concept clarity. The clarity of the content related to the concept in a subject, it is enhanced. Visual, auditory, kinesthetic techniques are utilized by teacher which facilitates learning. And fifth is it develops interest. It means if he is involved, his monotony is broken, his memory is increased, participation is increased, then obviously it increases his motivation to come back to the class and excel in the class. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्यों उद्दीपक परिवर्तन कौशल का उपयोग किया जाए, क्या आवश्यकता है इसकी। तो मूल रूप से अपनी कक्षाओं की एकांगी वृत्ति को तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों के दुराव को, विद्यार्थियों के अनाकर्षण की प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसके माध्यम से हम कक्षा को सतत सक्रिय गतिशील बना सकते हैं। हमारी कक्षा और प्रभावी बन जाती है। इसके द्वारा हम बहुविध इंद्रियों का भी उपयोग करने में सक्षम होते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्दीपक जो कि आपकी ज्ञान इंद्रियों को विशेष तौर पे आकर्षित करते हैं, उन उद्दीपकों का कार्य ही यही होता है कि विभिन्न इंद्रियों को वो विषय वस्तु में संलग्न कर सके। तो इसके द्वारा विद्यार्थी की धारणी क्षमता भी बढ़ जाती है और उसकी याददाश्त की क्षमता भी बढ़ जाती है। विद्यार्थी को दोनों तरह से लाभ होता है। हम ये भी देखते हैं कि विद्यार्थी इस प्रकार से कक्षा में ज्यादा क्रियाशील हो जाता है और स्वतः आगे बढ़ करके विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भाग लेने लगता है। साथ में विभिन्न प्रकार के श्रव्य, दृश्य, गमनशील माध्यमों का, तकनीकियों का, उपकरणों का जब हम उद्दीपक परिवर्तन के अंतर्गत उपयोग करते हैं तो विद्यार्थी के संप्रत्ययों की समझ को बढ़ा देता है और संप्रत्ययों की समझ के बढ़ने का मतलब यह है कि उसके अधिगम में ऊंचाई प्राप्त हो जाती है, वह बेहतर तरीके से विषय को समझ पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी की रुचि जागृत हो जाती है, उसकी अभिप्रेरणा जागृत हो जाती है और स्वतः अब आगे बढ़ करके वो कक्षाओं में भाग लेने लगता है। तो यह लाभ है जो कि उद्दीपक परिवर्तन में हमें मिलता है, एक अध्यापक के रूप में या एक शिक्षार्थी के रूप में या एक प्रशासक के रूप में या व्यवस्थापक के रूप में। Now coming to the next aspect, that is implementation in higher education. To truly engage adult learners, we must recognize that complex subject matter demands sustained attention. Adults respond best when teaching methods shift dynamically, appealing to different senses and cognitive styles. By doing so, we not only keep attention sharp, but also prepare students for the complexities of professional life, where adaptability and flexible communication are the keys.
तो हम ये देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा में इसे क्रियान्वित करना और भी आवश्यक है। क्यों? कि जो वयस्क अधिगम करता होता है वह अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता है। विशेष तौर पे जब विषय की जटिलता बढ़ती है तो वह अपने ध्यान को रोक नहीं पाता है और उसका ध्यान भंग हो जाता है। तो युवा अधिगमकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए हमको विविध प्रकार की प्रणालियों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे कि हम उनके इंद्रियों को आकर्षित करें और विभिन्न प्रकार की संज्ञानात्मक प्रणालियां, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां यह विद्यार्थियों को आकर्षित करने में हमें सक्षम बनाती हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थियों को न तो सामान्यतया हम आकर्षण के द्वारा कक्षा में ले आते हैं, परंतु विद्यार्थियों को हम आगे के व्यवसाय वृत्ति आधारित जीवन की जटिलताओं के लिए भी तैयार कर लेते हैं कि उन जटिलताओं पे कैसे वो काबू पा पाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि संप्रेषण को बढ़ाने में इसके द्वारा हमें बहुत ही बल मिलता है। यहाँ पे कुछ पक्ष दर्शाए गए हैं, लाइक लेक्चर इन्हांसमेंट, इट ट्रांसफॉर्म्स ट्रेडिशनल लेक्चर्स। इस कौशल का उपयोग करके हम परंपरागत व्याख्यान की शैलियों में परिवर्तन कर सकते हैं। डिस्कशन फैसिलिटेशन, इट क्रिएट्स डायनेमिक एक्सचेंज इन्वायरमेंट्स। यहाँ पे हम ये देखें कि परिचर्चा को बढ़ावा दे सकते हैं, संवाद को बढ़ा सकते हैं। लेबोरेटरी सेटिंग्स, integrating varied instructional approaches can be used। विभिन्न प्रकार के अनुदेशनात्मक उपागमों का उपयोग हम कर सकते हैं, समन्वित तरीके से उपयोग कर सकते हैं और खास तौर पे प्रयोगशाला की शैली में हम बेहतर शिक्षण कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग, अडॉप्टिंग प्रिंसिपल्स फॉर डिजिटल इन्वायरमेंट्स। खास तौर पे आज के दौर में और नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजिटल लर्निंग बहुत जरूरी है, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं तक आसानी से पहुंचे, विभिन्न प्रकार के विषयों को आसानी से ग्रहण कर सकें। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि डिजिटल इन्वायरमेंट के साथ भी हम इसके द्वारा अच्छे ढंग से जुड़ सकते हैं। एंड असेसमेंट एक्टिविटीज, it incorporates variation in evaluation methods. We can utilize different types of evaluation methods and there we can use these skills. Now the practical applications, we can practically use this skill in large group settings, breaking up lecture segments. When the group is large and we are not able to handle the groups properly, we can use large group settings by breaking up the lecture segments. In a small group context also we can use it by facilitating dynamic interactions. By context delivery, highlighting key concepts of variation, we can use content delivery. Then skill development, demonstrating processes with varied approaches can be done. Formative assessment, using variation to check understanding can be done. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि व्यवहारिक रूप से इसका कैसे उपयोग किया जाए। जहाँ बड़े समूह हैं, बड़े समूहों में व्याख्यान को विभिन्न भागों में बांट करके और प्रदर्शित किया जा सकता है। छोटे समूह यदि हैं तो वहाँ पे गतिशील अंतःक्रिया को हम प्रमोट कर सकते हैं। विषय वस्तु को हस्तांतरित करने के लिए जो मूलभूत पक्ष हैं या तत्व हैं उनको हम अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। कौशल विकास की दृष्टि से हम ये देखें कि विभिन्न क्रियाओं को विभिन्न उपागमों के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत हम ये देखें कि अलग अलग तरीके से विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नाउ सम कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। यदि इस कौशल को ज़्यादा प्रभावी बनाना है तो हमको कुछ पक्षों को त्यागना चाहिए या उनसे बचना चाहिए। जैसे कुछ मिस्टेक्स या गलतियां यहाँ बताई गई हैं, कुछ समस्याएं बताई गई हैं और किस प्रकार से उनका समाधान किया जाए, हाउ टू फिक्स, दैट हैज बीन टोल्ड।
Now first thing is over stimulation. कई बार हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा उपयोग में लाने लगते हैं तो समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो यहाँ पे समस्या क्या है? टू मेनी चेंजेस कंफ्यूज लर्नर्स। अचानक अगर उद्दीपकों का परिवर्तन बिना आवश्यकता के करने लगेंगे तो ये समस्या हो सकती है। तो हम ये कर सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर 2 या 3 बार ही अपने को हम परिवर्तित करें या उद्दीपक परिवर्तन का उपयोग करें। So you should limit to 2-3 variations per 10 minutes. Similarly, if there are irrelevant shifts, they create unrelated media distractions. And if you want to fix such things, you should align stimuli to lesson goals. That is DNA model for biology. It means such type of use of models can be useful to achieve the goals. तो कई बार हम ये देख सकते हैं कि पाठ की आवश्यकता के अनुरूप अगर हम उद्दीपकों का चयन और परिवर्तन नहीं करेंगे तो यह कई बार अप्रासंगिक हो सकता है। इस प्रकार की अप्रासंगिकता विशेष तौर पे विद्यार्थियों के ध्यान को भंग करती है। तो जो पाठ चल रहे हों उस पाठ की आवश्यकता के अनुरूप ही हमें इसका उपयोग किया जाना चाहिए। विषय की उपयोगिता के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन करते हुए हमको स्टिमुलस दिखाना चाहिए। जैसे डीएनए मॉडल का उपयोग हम बायोलॉजी की कक्षाओं में कर सकते हैं। Similarly, another mistake can be ignoring feedback. If you are not observing properly, then you will ignore. So, not observing student responses is not correct. You should scan for glazed eyes or fidgeting. It means you should scan the gestures of the students also and look into their eyes, observe their faces and accept their stimulus also. You should not ignore them. You observe them properly and handle the responses effectively so that they come back to the class with the same energy which is required from them. So these are the common mistakes to be avoided. Sixth is implementation guidelines. You should take care of these points. These direct you in the proper direction. As already mentioned in the green figure, it directs where to go, how to go. A reflects progressive integration. Start with 2 to 3 components, gradually incorporate others. If you want to include stimulus variation, begin with 2-3 components and then you can incorporate others later. This is a implementation guideline. Another is planning. Note specific stimulus variation in lesson plans and plan in advance, then proceed. Similarly, authenticity. Variation should feel natural, not forced. Aligned with instructions, instructor's natural style is the best thing. तो दिशा निर्देशों के अंतर्गत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक साथ सभी घटकों को न लागू करें, 2 या 3 घटकों से शुरू करें और धीरे धीरे उनको कक्षा जैसे जैसे आगे बढ़ती है अन्य घटकों को आप जोड़ सकते हैं। तो प्रगतिशील समन्वयन आवश्यक है। नियोजन करते समय या योजना बनाते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कहाँ पाठ में उद्दीपक परिवर्तन का उपयोग करना है। प्रामाणिकता के संदर्भ में आपको ये देखना चाहिए कि आप प्राकृतिक दिखें, जैसे ये लगे कि आप बनावटी तरीके से कक्षा में उसको नहीं जोड़ रहे हैं बल्कि कक्षा की ये आवश्यकता है। तो यदि अनुदेशक या शिक्षक अपने प्राकृतिक तौर तरीके को ध्यान में रखते हुए और अपने प्राकृतिक तौर तरीके का अंग इसको बनाता है तो वह स्वाभाविक लगता है। तो स्वाभाविकता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होगी। Observation is another implementation guideline. You should monitor student engagement to adjust variations. There are various types of variations in the class and to have a proper eye on them is very much required and then you can adjust them accordingly. Similarly, balance is required. Avoid overstimulation or confusion in the class. Purpose,
Each variation should serve certain learning objective. It should not be deviating, it should not be distracting, it should be useful, fruitful. Then reflection, evaluate effectiveness after implementation. When you have finished implementation, then you should also reflect upon yourself. Again, just to say, विद्यार्थी को विशेष तौर पे आपको अवलोकित करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ किन परिवर्तनों की आवश्यकता है उन विद्यार्थियों में। समय समय पर सटीक अवलोकन आपको इसमें सक्षम बनाता है कि विद्यार्थियों को आप ज़्यादा संलग्न करें। इसी तरह से संतुलन कायम रखना चाहिए। कई बार अति का उपयोग से बचना चाहिए, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो एक संतुलन की आवश्यकता होती है जो कक्षा को स्वाभाविक बनाती है। उद्देश्य परक तरीके से आप इन उद्दीपकों का उपयोग करें। प्रत्येक उद्दीपक कहीं ना कहीं जो अधिगम उद्देश्य हैं उनको पूरित करने वाला होना चाहिए। तो उद्देश्य को भी सतत ध्यान में रखना चाहिए। रिफ्लेक्शन, तात्पर्य है कि जब आप पूरा क्रियान्वयन कर लें तो आप स्वतः आकलन करें, स्वतः मूल्यांकन करें कि आप कितने प्रभावी रहे हैं और इस तरह से स्वतः प्रतिपुष्टि लेकर के अपना सुधार करें। नाउ देयर आर सम इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। फर्स्ट चैलेंज इज टाइमिंग. You are having a limited time for you in the class, so you have to find appropriate moments for each variation. Classroom management, you have to maintain order during transitions. There should not be reflection that if you are transiting from one to another stimulus, then it is a break. You should also do it simultaneously in such a natural way that class management is not disturbed. So you should maintain order. Then personal comfort, developing confidence with different components should be there. You can do it with practice. Student differences, accounting for diverse response patterns should be there. You know that there will be differences among students, you must know how to handle them. It is a challenge. Cultural sensitivity, awareness of different cultures is very important. You should be able to interpret gestures and movement of the students. Then physical space, adapting to classroom layout constants is also required. There may be a well spaced classroom, there can be a classroom where is no less space, when there is a constant of space. So you should be able to handle the constants of the space in the classroom. Technology integration, smooth transitions between media. Then cognitive load, balancing variation with conceptual clarity and maintaining academic rigor is also required. हम ये कह सकते हैं कि क्रियान्वयन की बहुत प्रकार की चुनौतियां होती हैं। एक निश्चित समय में आपको सभी कुछ को समाहित करना है। यदि आप व्यवस्थित तरीके से कक्षा में उद्दीपकों को परिवर्तित नहीं करते हैं तो कक्षा प्रबंधन भंग हो सकता है। इसमें आपको सतत अभ्यास भी करना है। यदि आप सतत अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपका आत्मबल बढ़ेगा, विभिन्न घटकों को आप समाहित कर पाएंगे। विद्यार्थियों की विविधता या भेद को संज्ञान में रखते हुए आप विभिन्न प्रकार के व्यवहार के तरीकों को संचालित कर सकते हैं। जो सांस्कृतिक संवेदना है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सांस्कृतिक पक्षों की जागरूकता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विभिन्न प्रकार के हाव भावों को और विद्यार्थियों के चाल चलन को आप आसानी से समझ पाएं। फिजिकल स्पेस, कक्षा में विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को समाहित करने के लिए भौतिक रूप से स्थान की भी आवश्यकता होती है। कई बार स्थान की कमी या अधिकता हमको कक्षा में विभिन्न चीजों के संचालन में बाधा पहुंचाती है। तकनीकी का समावेशन भी बहुत जरूरी है। विभिन्न प्रकार की मीडिया को विभिन्न प्रकार के सेंसस को आकर्षित करने के लिए आवश्यकता है, तो किस प्रकार से आसानी से उनको इसमें शामिल किया जाए ये बहुत जरूरी है। संज्ञानात्मक भार, आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि विषय वस्तु और विभिन्न प्रकार के स्किल्स का उचित समावेशन करना है जिससे कि स्पष्टता के साथ हम उद्देश्यों को कक्षा में प्राप्त कर सकें। तो ये चुनौतियां हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। नाउ थिंग्स टू पॉन्डर और पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, कुछ बिंदुओं को जो आपको
विचार विमर्श करने चाहिए, व्यक्तिगत रूप से, छोटे समूहों में, और अपने को परिष्कृत करना चाहिए। कैन ओवर वेरिएशन बिकम काउंटर प्रोडक्टिव? क्या बहुत ज्यादा उद्दीपकों का परिवर्तन हमारे उत्पादन को या अधिगम की क्रिया को अंततोगत्वा प्रभावित कर सकता है? यह विचारणीय है। दूसरा, हाउ टू बैलेंस स्ट्रक्चर विद स्पॉन्टेनिटी? किस प्रकार से कक्षा की पूरी संरचना को सततता के साथ, संतुलन के साथ हम आगे बढ़ाएं? थर्ड, व्हाट्स योर मोस्ट इफेक्टिव स्टिमुलस स्ट्रेटेजी? कौन सा उद्दीपन आपके याव्यू का सबसे प्रभावी भाग होता है? इसको भी आपको विचार करना चाहिए। Fourth, during your previous teaching experience, if any, recall what kinds of stimulus variations were used by you in the classroom. Recollect those experiences and correlate them with the contents discussed in today's lecture. आज के व्याख्यान के अंतर्गत विभिन्न पक्षों पे हमने विचार विमर्श किया, विभिन्न पक्ष रखे। आप खुद ये विचार करें, अपने पुराने शिक्षण अनुभव को संज्ञान में ले आएं और याद करें कि किस प्रकार से उद्दीपक परिवर्तन का उपयोग कक्षा में आपके द्वारा किया गया था। अपने यादाश्त के आधार पर उन अनुभवों को खास तौर पे आज के व्याख्यान के विभिन्न पक्षों के साथ जोड़ के देखें। तो इन चीजों पे आपको लगातार विचार करने की आवश्यकता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन, अंत में निष्कर्ष के रूप में हम इन बातों को समग्र रूप से कह सकते हैं, स्टिमुलस वेरिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग कंपोनेंट बिहेवियर्स अमंग द टीचिंग स्किल्स। शिक्षण कौशलों में एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण व्यवहार का घटक उद्दीपक परिवर्तन कौशल है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सशक्त कौशल है जिसके द्वारा हम अपनी अप्रभावी कक्षाओं को गतिशील, समावेशी और समग्र कक्षाओं के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके लिए हमको बहुत ही विचारशील तरीके से उद्दीपक परिवर्तन को अपने अनुदेशन में सम्मिलित करना चाहिए। It is a vital teaching skill that transforms static classrooms into dynamic, inclusive, holistic learning environment. And for the effective use, variation should be thoughtfully blended to keep instruction fresh and engaging. Mastery of stimulus variation fosters interactivity, supports both cognitive and affective learning, and reflects the evolving nature of the teaching learning process, making it indispensable for effective higher education pedagogy. उच्च शिक्षा में आवश्यक रूप से एक प्रभावी शिक्षण विधि के रूप में, शिक्षण प्रविधि के रूप में, शिक्षण कौशल के रूप में शिक्षण व्यवस्था में शामिल करने के लिए जो उद्दीपक परिवर्तन कौशल है वह एक सशक्त कौशल है, क्योंकि यह क्रियाशीलता को बढ़ाता है और सबसे महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक और भावात्मक अधिगम के पक्षों को भी वो समाहित करता है। इस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, प्रभावी बनाता है और विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। तो इन पक्षों पे आप सतत विचार करें और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। थैंक यू।